Hi students, hope you all are doing well. Now, today is supposed to be most interesting concept that why people fear about maths from grade you can say first standard say लेके at all higher levels every student has one feeling sir maths is really tough. Is maths that really tough? The answer is no. But then what makes it tough? Why it is tough? Why do people make it look that way? I'll answer all your questions along with solutions for all that thing. So listen carefully. First thing, why maths becomes difficult. First important reason is expectation of parents. Now, can I say from day one whenever maths has been introduced अपने को बच्चे लोग को यही सिखाया जाता है कि maths is a scoring subject where you are supposed to score full marks. Each and every parent expects full marks from each and every kid at least in maths. पेरेंट्स का एक कॉमन आंसर होता है बाकी सब सब्जेक्ट में ठीक है मैथ्स में तो फुल आना ही चाहिए. Now that can I say parents makes an additional pressure, additional stress factor for your students in that examination. And every parent you are aware that because of that stress, performance, efficiency of your child in maths examination goes down. Because of that extra burden on their head, what it does, it makes them make simple mistakes जो नॉर्मल कंडीशन में स्ट्रेस फ्री एनवायरनमेंट में कभी नहीं होता है. यू माइट हैव हर्ड स्टूडेंट्स सेइंग सर घर पे तो ये सब इजीली हो जाता है बट एग्जाम में आई डोंट नो व्हाट हैपेंस. कैन आई से दैट इज रीजन, दैट इज स्ट्रेस फैक्टर इन द हेड दैट ये 100 मार्क्स का पेपर है, 80 मार्क्स का पेपर, वी वांट 80 on 80. स्टूडेंट्स and parents, do not take unnecessary stress in your head. Treat maths as like any other subject. Parents 4-5 मार्क कम भी आ गए तो क्या फर्क गिरता है? Is it an end of the world? No. Can I say you can score that marks in other subjects? Yes, of course yes. So एक बार पेरेंट है अपने चाइल्ड को बोल के देखो बच्चा ये नॉर्मल सब्जेक्ट ही है, go and perform according to your efficiency, according to your capability and see how it works. Take my word parents, automatically आपका बच्चा जब ये एग्जाम हॉल में जाएगा ना, without that extra luggage on his head, his performance will definitely increase. बच्चे लोग सब लोग खुश हो रहे हैं कि पेरेंट्स को सर बोल रहे हैं. Now this was the one reason why people don't score good at maths. Now students, it is for you. I'll ask you a second question or second reason why you don't score good at maths. Do you have interest in maths? Very sorry to say students, the answer is frankly and open no. You don't have interest. Sir interest नहीं है ऐसा नहीं है. Accept it that you don't have interest. See, I also understand equations, numbers, fractions, ratios, theorems, circle, properties, calculus, limits, functions. Sir, कितना सारा चीज़ है कैसे याद रखे बच्चा? Can I say same thing if I ask you, do you remember latest movie के songs only by listening it once? The answer is yes. Do you remember names of movies? Do you remember statistics of sports players? Where did they play? How many runs they scored? How many goals they scored? The answer is yes. So, is there a problem something in your CPU? It is your head? The answer is no. The problem is interest. Do you take maths as a subject or treat maths as a subject where you can definitely excel? The answer is no. You only take it for exam point of view. ऐसा नहीं होता है बच्चे लोग. When you take anything with interest, when you do anything with interest, automatically performance, efficiency, your capability, your skill level, everything comes out.
एंड इन दैट केस व्हाट हैपन्स इज, आप जो चीज़ पहले विदाउट इंटरेस्ट 3 घंटे में करते थे, वही चीज़ अभी 1 घंटे में हो जाएगा. सो दैट सेव्स, कैन आई से, योर 2/3 ऑफ टाइम. वो 2/3 जो टाइम बचा, दैट कैन आई से यू कैन यूटिलाइज in doing extra things. But the problem right now with everyone is, are you ready to take challenges in your life? No. Are you ready to accept new things in your life easily? The answer, easily बोल रहा हूँ, the answer is no. हाँ, अगर आपके सर पे आ गया है कि भाई कल एग्जाम है, अभी तो पढ़ना ही है, तो पढ़ोगे. बट ऐसा है कि आज एग्जाम खत्म हुआ और आज रात को मैथ्स के 5-10 सम प्रॉब्लम प्रैक्टिस किए? आंसर इज नो. Reason is it is lack of interest. Now students, सर तो इंटरेस्ट जगाए कैसे? इंटरेस्ट जगाने का बच्चे लोग एक ही मेथड है. Whatever you do it, understand why you do it. When you understand why you are doing it, automatically you will start developing interest. Automatically you will start developing interest. I'll give a simple example. जब भी कोई नया बच्चा कार सीखता है ना, तभी उसको ट्रेनर बाजू में बैठा और बोलता है ये ब्रेक है, ये क्लच है, ये एक्सीलरेटर है, ये गियर्स है, ये स्टीयरिंग है, ये मिरर्स देखो, इधर उधर इतना सारा चीज़ सर चलाने टाइम इतना सारा कैसा ध्यान रहे? ऑफ कोर्स यस, बट वंस यू डू इट, वंस यू लर्न इट, फिर यही सब चीज़ आप करते ही हो, बट विदाउट योर नॉलेज. दैट कम्स इंस्टिंक्टिवली. तो यही चीज़ मैथ्स में है ना, जब भी आप प्रेशर लेकर करते हो तो आपको लगता है अरे सर कैलकुलस याद रखे, लिमिट्स याद रखे, फंक्शंस याद रखे, थियोरम्स याद रखे, ज्योमेट्री सर कितना हार्ड है, अलजेब्रा में इतने इक्वेशन, वर्ड प्रॉब्लम्स. बट यही चीज़ इंटरेस्ट से करोगे ना तो इंस्टिंक्टिवली आ जाएगा. सो स्टूडेंट्स स्टार्ट डेवलपिंग इंटरेस्ट टुवर्ड्स मैथ्स. थर्ड प्राइमरी रीजन फॉर नॉट स्कोरिंग गुड मार्क एट मैथ्स इज प्रैक्टिस. बच्चे लोग, क्वेश्चन दिस टू योर सेल्फ, डू यू ऑनेस्टली डू प्रैक्टिस मैथ्स ऑन अ रेगुलर बेसिस? इफ योर आंसर इज यस, स्टिल यू डोंट गेट गुड मार्क्स, देन कैन आई से वी हैव एन इजी सोल्यूशन. बट इफ योर आंसर इज नो, सर नहीं हम लोग तो प्रैक्टिस ही नहीं करते, देन it is such a subject, students, that unless and until you regularly practice it, ये ऐसा नहीं कि साइकिलिंग एक बार सीखा तो अभी आ ही गया, अपने को अभी भूल नहीं सकते. आई बीइंग अ टीचर फ्रॉम 23 years में मैथ्स पढ़ाता हूँ, बट आई ऑलवेज कीप सेइंग टू माई स्टूडेंट्स, अगर 2 महीना मैं भी मैथ्स नहीं करूँ, आई ऑल्सो नीड अ प्रैक्टिस. सो इफ आई नीड अ प्रैक्टिस आफ्टर डूइंग सेम थिंग्स अगेन एंड अगेन फ्रॉम लास्ट 23 years, यू आर डूइंग इट फॉर फर्स्ट टाइम child, do you need? Yes sir. तो their answer lies over here कि प्रैक्टिस तो सर करना ही पड़ता है. यस बच्चे लोग, योर पेरेंट्स कीप ऑन सेइंग कि मैथ्स आप आधा घंटा रोज करो. सी वॉट एवर टाइम यू डिसाइड, यू डू इट हाफ एन आवर, यू डू इट 15 minutes, you do 3 sums, you do 4 sums, you do 5 sums. पहला कंडीशन इज डू इट नॉट फॉर सेक ऑफ डूइंग इट, बट विद इंटरेस्ट ऑफ गेनिंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स. तो 3 रीजन, एक तो स्ट्रेस फैक्टर जो आपके सर पे था बिकॉज ऑफ एक्सपेक्टेशन ऑफ एवरीवन. सेकंड वाज योर लैक ऑफ इंटरेस्ट. थर्ड, लैक ऑफ प्रैक्टिस फ्रॉम योर साइड. चौथा, जेन्युइनली ये कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड वाला सब्जेक्ट है. मीन्स देर आर सो मेनी कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स ओवर हियर जो लर्न नहीं किए जा सकते, जो समझने पड़ते हैं. समझने के लिए जब भी वो कॉन्सेप्ट सिखाए जाते हैं तभी ध्यान देना पड़ता है. सपोज सर तभी ध्यान नहीं दिया था, अभी क्या करें? तो यू हैव एन ऑप्शन, ऐसा नहीं है वही ऑप्शन वापस कहना इसे, यू हैव सो मेनी यूट्यूब वीडियोस, जो भी देख लो. नहीं हो तो हमारे जैसे लोगों से पूछ लो, सर ये कॉन्सेप्ट हमको नहीं आता है. लोगों को एट हायर लेवल्स ऑल्सो, आई एम सो अफ्रेड टू से एंड आई एम सो सॉरी टू हियर दिस, बट क्रॉस मल्टीप्लाई भी लोगों को नहीं समझ में आता. They don't understand a difference between an LCM and a cross multiply. Believe me students, this is a fact. So there are so many concepts. छोटे छोटे बहुत कॉन्सेप्ट हैं. फॉर एग्जाम्पल प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इसके बाद मैथ्स है क्या? कुछ नहीं. प्लस और मल्टीप्लाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है. जैसे ही माइनस आया
स्टूडेंट स्टार्ट्स फियरिंग, अभी वो साइन चेंज, डिवाइड में, फ्रैक्शन में आंसर आया तो लफड़ा। तो ये सब चीज़ बच्चे लोग कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आपको ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5 से सिखाया जाता है। सपोज तो अभी नहीं समझा था, नहीं ध्यान दिया था, तो आज वो सब चीज़ किधर ना किधर अवेलेबल है। यू एक्सेस सो मेनी अदर साइट्स, एक्सेस दिस ऑल्सो, लर्न वन टाइम कॉन्सेप्ट। एक बार कॉन्सेप्ट कर दिया, लाइफ टाइम याद हो गया, लाइफ टाइम याद हो जाएगा। तो चौथा रीजन इज बच्चे लोग योर नॉन क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स, माइट बी वेरी स्मॉल कॉन्सेप्ट्स, माइट बी डिटेल्ड लेवल कॉन्सेप्ट, जो भी है, वॉट एवर इज द रीजन, वो कॉन्सेप्ट्स आपके नहीं स्ट्रॉन्ग हुए इसकी वजह से। और पांचवा फैक्टर बच्चे लोग, लास्ट फैक्टर, कॉन्फिडेंस। द वन रीजन why can I say I felt intense need to upload this video was seeing lack of confidence among students for maths as a subject. कोई भी बच्चा जिसको मैथ्स में एग्जाम के बाद 100 में से 98 भी आया ना, वो भी एग्जाम के दिन पे तो टेंस्ड ही था, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ही था कि सर हमको ये आएगा कि नहीं आएगा। There are students, I have heard from students, सर हम लोग जब भी पेपर सॉल्व करते हैं ना, तभी अपने को, हमको तो ऐसा ही लगता है आंसर रॉन्ग ही है। मतलब दे डोंट हैव अ कॉन्फिडेंस ऑन देमसेल्फ कि आंसर रॉन्ग है कि राइट है, रॉन्ग ही है। नाउ द मोमेंट इट इज रॉन्ग विच यू थिंक, भले वो राइट है, बट क्या है आपके माइंड में तो वो क्वेश्चन मार्क बैठ गया, तो क्या होता है, देन यू चेक इट ट्वाइस, देन यू चेक इट थ्राइस, तो वो टाइम भी वेस्ट होता है। प्लस कई बार बच्चे लोग, आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, आपने करेक्ट लिखा था बट बिकॉज ऑफ योर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वो गलत हो गया, आप वापस कैंसिल कर दिया और गलत आंसर लिख के आ गए। इट हैपेंस, इट इज़ वेरी कॉमन थिंग। सर ये कॉन्फिडेंस तो अभी नहीं है, मैथ्स के एग्जाम में सर ये प्रॉब्लम ही है। स्टूडेंट्स, व्हेन यू रेगुलरली डू इट बाय अंडरस्टैंडिंग थिंग्स दैट व्हाट यू आर डूइंग, खाली लिखने के सेक पे नहीं, व्हेन यू रेगुलरली डू इट बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाई यू आर डूइंग इट, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस, क्या हो जाएगा, आपका वो कॉन्सेप्ट इतना माइंड में बैठ जाएगा ना कि द मोमेंट यू सी अ क्वेश्चन, आपको समझ में आ जाएगा, एक ही मिनट में आपके माइंड में पूरा आंसर होगा आपके सामने माइंड में, देन यू स्टार्ट राइटिंग इट। और आपको पता ही होगा ये आंसर आना चाहिए, कुछ भी हो जाए, इट हैज़ टू बी डन दिस वे। बट उसके ये कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए आपको पहले 3 स्टेप जो बताए ना, स्ट्रेस निकाल दो, इंटरेस्ट क्रिएट करो, प्रैक्टिस करते जाओ, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स, ये सब करोगे तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कॉन्फिडेंस इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑल दिस स्टेप्स। रिमूव स्ट्रेस, सिंपल। एंड लास्ट थिंग स्टूडेंट्स, I want to understand, I have understood psychology of so many students that they have a phobia for maths. phobia मतलब सर, phobia मतलब बच्चे, जैसे I myself have a phobia of great height, मतलब ऊपर से नीचे नहीं देख सकता, बहुत ऊपर से डर लगता है, गिर जाऊंगा तो। अरे मैं चारों साइड सपोज प्रॉपर सराउंडिंग है, कैसे गिरूंगा, ऐसे खड़े होते थोड़ी मैं गिर जाता हूँ, तो उधर कैसे गिरूँ, बट मेरे को फोबिया है, आई कैन नॉट लुक फॉर मोर देन 10 सेकंड्स। अरे 10 क्या 5 सेकंड्स ले लो। तो वैसा ही बच्चे लोग को मैथ्स का पेपर आता है ना, तभी फोबिया होता है। द मोमेंट दे स्टार्ट सीइंग अ पेपर, सर ब्लैंक, इवापोरेट, सर इसका क्या करें, हाँ सर ये प्रॉब्लम हमारे साथ भी है, हमारे बच्चे को भी है, सर अब इसका करें क्या। फर्स्ट थिंग स्टूडेंट्स, फर्स्ट थिंग, अभी जो रीडिंग टाइम दिया जाता है बच्चे लोग को, इन सम बोर्ड्स देयर आर रीडिंग टाइम्स 15 मिनट्स। नाउ आई से इट इज अ डबल एज्ड स्वॉर्ड। व्हाट इज अ डबल एज्ड स्वॉर्ड? इट वर्क्स टू योर बेनिफिट आल्सो, इट कैन मेक यू डू समथिंग व्हिच यू रियली डिड नॉट वांट टू डू। क्या होता है रीडिंग टाइम? आपको पेपर पहले पढ़ना होता है 15 मिनट, कि भाई कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, कौन सा क्वेश्चन नहीं करें। द प्रॉब्लम इज इफ इन दैट वाइल रीडिंग 2 सम आपने ऐसा एक सम भी देख लिया जो आपको नहीं आता है, वो आपने छोड़ दिया है,
तो अभी आप वो तो क्वेश्चन नंबर 7 है, बट आप क्वेश्चन 1 स्टार्ट करोगे ना, तभी बिहाइंड बैक ऑफ योर माइंड, सबकॉन्शियस माइंड जिसको बोलते हैं, वही घूमते रहेगा, वो कैसे करूँ, वो कैसे करूँ, वो कैसे करूँ। इधर 36 माइनस 9 लोग 25 लिख के आते हैं। आप भी सोचोगे सर 36 माइनस 9 29 नहीं 25 होता है, चेक कर लेना, इट इज़ नॉट, इट इज़ 27 स्टूडेंट्स। ये बहुत सिंपल थिंग है, बट ऐसा मिस्टेक करके आते हो लोग। 5 3 सा लोग 8 लिख के आते हैं, 5 + 3 is 8। सर ऐसा थोड़ी होता है, अरे होता है बच्चे लोग, दिस इज ओनली थिंग। और ये सब क्यों होता है? क्योंकि आपका 95% ऑफ माइंड, एक्टिव ब्रेन इज थिंकिंग ऑफ दैट क्वेश्चन 7 विच यू डोंट। और वो आप कितना भी सोच लो ऐसे भी नहीं आने वाला है। तो सर रिपीट पेपर पढ़ने का कि नहीं पढ़ने का? I said it is a double-edged sword. It works to your benefit also, students. You know what to attempt, when to attempt, where to attempt, how much to attempt. But अगर आपका माइंड ऐसा है, अगर you are not mentally strong enough, क्योंकि पूरे पेपर में you expect कि आपको सब आता है वैसे ही क्वेश्चन आएंगे, नहीं, 1-2 क्वेश्चन ऐसे होंगे, बट आर यू मेंटली स्ट्रॉन्ग कि वो 2 क्वेश्चन है ना, बाकी के 30 क्वेश्चन तो मेरे को आते हैं, वो 30 तो कल बाद में 2 देखें। इफ यू आर मेंटली स्ट्रॉन्ग, रीड इट। इफ यू आर नॉट मेंटली स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट्स, देन प्लीज 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 अवॉइड रीडिंग पेपर एट द फर्स्ट। जैसे क्वेश्चन आए वैसे देखते जाने का, वैसे सॉल्व करते जाने का। ये एग्जाम सीजन अभी चालू हो रहा है, एवरीबडी इज कैन आई से वरीड अबाउट ऑल दिस थिंग्स। तो इसके लिए बच्चे लोग ये वीडियो specially for you parents, I want you also to watch this video and take care whatever were the points discussed in this video. If it is taken care of properly, still you have ample of time to score good marks है बच्चे लोग। एग्जाम्स आर फार, ऐसा ही समझ लो, आपके पास बहुत टाइम। इफ यू डू इट प्रॉपरली, जो भी सिखाया है, डोंट टेक अननेसेसरी स्ट्रेस। अपने फ्रेंड्स अपने को बोलेंगे कि ये सम आता है, वो सम आता है, ये नहीं आता है, वो नहीं आता है, इग्नोर इट। Practice hard, concentrate hard, work on your weaker concepts, जो भी concepts आपको नहीं आते, work on that, remove mental fear। वो fear आधा brain occupy कर लेता है, remove that। मैंने बोला ना 5-7 मार्क 10 मार्क कम आए मैथ्स में, forget it, बाकी तो आए ना, 10 मार्क बाकी कोई सब्जेक्ट में स्कोर कर देंगे, सब मैथ्स में 100 में से 100 ही लाना है। ऐसा प्रेशर लेके मत जाओ एग्जाम में। इट माइट हैपन, it may not happen. If it may not happens, it is not end of life. You have, can I say, ample of other subjects to score that lost marks in maths. Hope so, students, you have understood this. See this video twice, thrice, 4 times, 5 times. I promise you, आपका मैथ्स का परफॉर्मेंस ये वीडियो से improve हो जाएगा. And share to most of your friends who are in need of this. Thank you so much. Bye.